Good morning 10th class. Today we start our next topic, that is parts of sentence. A sentence can be divided into the following two parts. एक sentence को हम two parts में divide कर सकते हैं. First one is subject part, second is predicate part. Look at the given sentences divided into two parts. Here is some examples. Dogs bark. These are sentences which is divided into two parts. Okay. Dogs bark. Dog denote subject part, bark denote predicate part. Subject part is that part of a sentence which denote the subject of that sentence. Okay, and rest of that sentence part is called predicate part, in which we have verbs, object of that sentence. Sudha is a doctor. Sudha denote subject part. ठीक है, Sudha denote the subject of that sentence is a doctor. Denote predicate part. Okay. He teaches information technology. This intelligent scientist has invented the fastest way of communication. The President of India has awarded the actor a national award for acting. These are some examples of sentence which is divided into two parts, subject part and predicate part. Subject part denote the subject of that sentence and rest of that part is called predicate part. In terms of the parts of sentence, it is important to understand the following three ways of sentence formation. अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज enlargement of the subject. Sometimes the subject of a sentence is preceded or followed by a qualifying words or words like noun or an adjective. इस पॉइंट में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है. सेंटेंस के इस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है. इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो सब्जेक्ट के पहले या बाद में यूज़ करते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं. वो वर्ड नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. ओके. इट एड्स मीनिंग टू और इलैबोरेट द सब्जेक्ट. इट इज़ कॉल्ड एन इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट. सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं, उसके मीनिंग को स्पष्ट रूप से हमें बताया जाता है. इसको इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट बोलते हैं. ठीक है. सम एग्जाम्पल. लेजी रौनक फेल द एग्जामिनेशन. अ डिज़ायर टू विन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस. लेजी रौनक एग्ज़ाम में फेल हो गया और जीतने के लिए हमारे पास एक इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है. सफलता के लिए जीतने की जो इच्छा शक्ति है वो ज़रूरी होनी चाहिए हमारे पास. ठीक है. ये दो सेंटेंसेस हैं. तो यहाँ पर रौनक एक सब्जेक्ट है. ठीक है. इसके आगे, इससे पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया लेजी. लेजी डिनोट दी एडजेक्टिव. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ दैट सेंटेंस. और सेकंड सेंटेंस में जीतेंगे तभी तो सक्सेस होंगे. ठीक है. टू विन, ये हमने अपने सेंटेंस में यूज़ किया है. तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होने वाले ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस को एक अलग मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके. Second point is extension of the predicate. Sometimes the predicate of a sentence is preceded or followed by a qualifying word or words like noun or an adjective. इसमें predicate part पर फोकस किया जाता है. predicate part से पहले या बाद में noun और adjective word यूज़ किए जाते हैं ताकि ये sentence को एक स्पष्ट मीनिंग प्रोवाइड करे. Okay, it adds meaning to or elaborate the predicate. It is called extension. Extension means स्पष्ट रूप से, विस्तार रूप से बताना. ठीक है. Some example. The rich man donated generously and Ronak failed the annual examination. यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट को नहीं, predicate पार्ट को एक्सटेंशन किया गया है, बढ़ाया गया है. ठीक है. Next point is object and complement of the predicate. When the verb in this predicate is a transitive, it needs an object to complete its meaning. Predicate part में जो verbs यूज़ की जाती हैं वो transitive होती हैं. मीन्स उसमें एक object होता है. कंप्लीट मीनिंग को शो करने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट यूज़ होता है.
Some example, I know her. Her is an object. He helped me in my studies. इसमें her and me यूज किए गए हैं as an object. But if the verb in the predicate is intransitive, जब predicate part में जो verbs यूज की जाती हैं वो intransitive होती हैं, it does not need any object, उसमें कोई object का नहीं किया जाता. It is complete in itself, ये अपने आप में ही complete होती हैं. इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. However, if the speaker wants to further clarify the meaning of an intransitive verb of the predicate, he may use a complement. जहाँ पर intransitive verbs का यूज़ किया जाता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते. तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या यूज़ करेगा, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेगा अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए. ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाएगा फॉर क्लैरिफाइंग द मीनिंग ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, समटाइम इवन द इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ द प्रेडिकेट नीड्स एडिशनल वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स, टू कंप्लीट देयर मीनिंग. प्रेडिकेट पार्ट में जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं कई बार वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ एडिशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं. वो वर्ब भी हो सकती हैं, ठीक है, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एडिशनल वर्ड्स यूज़ करती हैं. सच एडिशनल वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. तो जो वो वर्ब्स यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. For example, the rich businessman donated generously. Ronak is a software engineer.